Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, today we are going to learn the topic total internal reflection and application of total internal reflection. We will discuss the first two application of total internal reflection, that is totally internal reflecting prism and the optical fiber. In this lecture, we will discuss what is meant by total internal reflection, what conditions are necessary for the light to reflect total internally, and what are the applications of total internal reflection. So let's start. First of all, what is total internal reflection? Students, you have learned about the reflection that when a ray of light pass from one medium and strike the second medium, it will bounce back to the first medium again. This phenomena is called reflection of light. But what is total internal reflection? When a ray of light traveling in a denser medium enters into a rarer medium, it bends away from the normal. Look at the picture. The ray of light is coming from the denser medium and enters into the rarer medium. Students, आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी, मूव करके जाएगी, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड स्लो है, लेकिन रेयर मीडियम में जाके उसकी स्पीड क्या हो गई है, फास्ट हो गई है. लेकिन एक और बात ये कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है. और वो वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है. अब क्रिटिकल एंगल क्या है? The angle of incidence that causes the refracted ray in the rarer medium to bend through 90 degrees called critical angle. Critical angle वो एंगल है जो एक रिफ्रैक्टेड रे को मजबूर कर दे या उसके 90 डिग्री पे बेंड होने की वजह बन जाए, वो एंगल क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल कहलाता है. मतलब उसकी वैल्यू कुछ इतनी होगी कि वो रिफ्रैक्टेड रे जो है उसको बेंड करवा देता है 90 डिग्री पे ऑन द रेयर मीडियम. ओके. And when the angle of incidence become larger than the critical angle, लेकिन जब angle of incidence critical angle से बड़ा हो जाएगा तो light, the entire light is reflected back into the denser medium, and this phenomena is called total internal reflection. मतलब अगर angle of incidence greater हो जाता है angle of क्रिटिकल एंगल से, तो फिर लाइट रेयर मीडियम में नहीं आएगी, बल्कि वो कहाँ चली जाएगी? दोबारा रिफ्लेक्ट होके डेंसर मीडियम में ही वापस चली जाएगी. लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो. अब अगर आप इन तीनों फिगर्स को देखें तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट की रे जो है वो क्या हो गया है? रिफ्रैक्ट हो गई है और नॉर्मल से अवे बेंड हो गई है. लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल बराबर हैं तो फिर क्या हुई है? रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो गई है 90 डिग्री से इन द रेयर मीडियम. बट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बड़ा है क्रिटिकल एंगल से तो लाइट की जो रे है वो क्या हो गई है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई है. मतलब वो डेंसर मीडियम से ही इंसिडेंट हुई है और डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो गई है. और ये पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है. Okay, I hope you got it. Now, what are the applications of total internal reflection? Students, there are 4 applications of total internal reflection that are given in your textbook, that are totally internal reflecting prism, fiber optics, light pipe, and endoscope. And in this video lecture, we will discuss the first 2 applications of total internal reflection, and the other 2 will be discussed in the next lecture. So, first of all, what is total internal reflecting prism? Students, बहुत से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम
राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म्स को यूज़ करते हैं, और इसकी रीज़न यही है कि वो बीम ऑफ लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री के थ्रू क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? कैमरा, बाइनोकुलर्स, पेरिस्कोप एंड टेलीस्कोप, जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या तो दूर की चीज़ों को करीब करके देखने के लिए, जिसको आप जूम भी करके देखना कहते हैं, और टेलीस्कोप के थ्रू हम बहुत सी जैसे स्टार्स को देखना कि वो शाइन कर रहे हैं। इस तरह काफ़ी जो हमारे पास फिनोमिनाज हैं उनकी डिटेल देखने के लिए हम ये इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब होता इन प्रिज्म्स में क्या है कि जब एक, जैसे आप इस फिगर 12.10 में देखें कि ये जो प्रिज्म है इस पोजीशन में पड़ा है कि इसका ये वन एंगल जो है ना ये 90 डिग्री का है। इस प्रिज्म को आके जब बीम ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करती है और जाके हाइपोटेन्यूज को टकराती है, तो वो क्या हो जाती है? विदाउट डेविएशन वो क्या होती है? डेविएट हुए बगैर क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है और ये ग्लास के क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। अब हमने यही कंडीशन देखी थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तभी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इसमें यही है कि ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास की, दैट इज 42 डिग्री। तो लाइट जब 45 डिग्री के एंगल से स्ट्राइक करेगी तो ये ग्लास के क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो इसलिए विदाउट डेविएट हुए लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर देगी, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। अब इस तरह के जो दो प्रिज्म्स हैं हमारे पास, ये जो अभी फिगर हमने डिस्कस किया 12.10, इस तरह के जो दो प्रिज्म्स हैं वो प्रिज्म पेरिस्कोप्स में यूज किए जाते हैं, इस तरह के दो प्रिज्म। एंड अगर प्रिज्म हमारे पास इस पोजीशन में प्लेस्ड है, जो फिगर 12.12 में जो फिगर शो है आपके पास, यहाँ पे जो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट करेगी बाय अ प्रिज्म बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यहाँ पे जो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है वो किस एंगल की हेल्प से होगा? किस एंगल के थ्रू होगा? 180 डिग्री के थ्रू होगा। और इस तरह के जो दो प्रिज्म्स हैं वो बाइनोकुलर्स में यूज होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, फॉर योर कन्वीनियंस, कि आपको ये समझ आ जाए कि पेरिस्कोप क्या है, किस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, एंड व्हाट इज मीट बाय बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स को कहाँ यूज किया जाता है, इनकी क्या हमारे पास जो है ना एडवांटेज है। सो फॉर दिस पर्पस यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। A prism periscope is an instrument used for viewing objects that are higher or lower than our eye level. Therefore, they are usually used in tanks and submarines to observe movements without being seen. It consists of two prisms that are fitted into each end of the tube. In the periscope, light hits the top prism at an angle of 45 degrees. This is greater than the critical angle of the prism, hence total internal reflection occurs. This reflected ray leaves the top prisms at the same angle. It then strikes the bottom prism at an angle of 45 degrees and is reflected into the viewer's eyes. Hence, the periscope directs the light from the object to the observer. Total internal reflection also occurs in binoculars. A binocular uses two prisms on each side. The critical angle of a prism is around 42 degrees. When light enters a right-angled prism, it creates an angle greater than the critical angle, causing total internal reflection. Now students, we will discuss what is optical fiber. Total internal reflection is used in fiber optics, which has a number of advantages in telecommunication field. Optical fiber telecommunication field में हमारे पास यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है और क्या एडवांटेज है इसको यूज करने का, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स बहुत हेयर साइज थ्रेड होता है, ये जो ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का होता है और इसी के थ्रू लाइट ट्रेवल करती है। अब फाइबर ऑप्टिक्स का जो इनर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, दैट कैरीज द लाइट एंड एन आउटर कंसेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग। अब ये देखें, अंदर ये कोर आपको शो रही है, जो इनर साइड है दैट इज इट्स कोर एंड द आउटर साइड इज कॉल्ड क्लैडिंग, जो
आउटर जो इसका कंसेंट्रिक शेल है वो क्या कहलाता है, क्लैडिंग कहलाता है. द कोर इज मेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स or high index of refraction you can say, and the cladding is made of glass or plastic but of relatively low refractive index. Students, refractive index क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में कि speed of light in a medium divided by speed of it is the ratio between the speed of light in air to the speed of light in medium. तो जो हमारे पास कोर है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हाई रखा जाता है जबकि क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लो रखा जाता है. अब लाइट जब कोर की एक एंड से अंदर आती है और जाके कोर क्लैडिंग बाउंड्री को स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल and is reflected back into the core. In this way the light travels many kilometers with small loss of energy. अब क्या होता है कि जब इसमें लाइट ग्रेटर एंगल ऑफ इंसिडेंस से जब आके कोर क्लैडिंग बाउंड्री को स्ट्राइक करती है तो विदाउट डेविएट हुए वो क्या करती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है दोबारा कोर में, और इसी तरह लाइट क्या करती है, बहुत से किलोमीटर्स को वो ट्रेवल कर लेती है और लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ही स्मॉल होता है. और पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर जो है ना उसको यूज़ किया जाता है टेलीफोन के लिए एंड एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, और हम थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कॉल्स को अब इसीलिए विदाउट डिस्टर्बेंस सुन सकते हैं क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो है हम ये लाइट की स्पीड के थ्रू काम कर रहे हैं और ये इतना फास्ट काम होता है कि अब हम थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कॉल्स सुन सकते हैं लेकिन दरमियान में डिस्टर्बेंस नहीं होती. जैसे पहले नॉइज़ आ जाता था, कुछ और प्रॉब्लम था, लेकिन अब ऑप्टिकल फाइबर ने हमारी जो लाइफ है उसको आसान कर दिया. ऑप्टिकल का वर्ड ही इसके साथ यूज़ है कि ये लाइट के तौर पे अब काम कर रही है. ये अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है जिसमें लाइट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, वो लाइट के थ्रू अपना काम कर रहे हैं. ओके students, this was very important application of total internal reflection and I hope you got it very well. Now it is the time for your home task. You have to do all these review questions that is related to this topic and practice example 12.4 also. And in the case of any query you can ask me anytime. Thank you. Allah Hafiz and stay safe.